saying thank you, sir, for that heartfelt rendering of our prayer. Being an engineer is no mean feat. The ever-escalating standard of competition today requires us to be constantly on our toes, and Alan ensures that we are always abreast of the changes and challenges in this field. To shed more light on the engineering entrance examination patterns and the prerequisites for them, I would invite Mr. Kalyan Kumar, Member of Faculty in Chemistry, to take the stage. Thank you. Good evening. I said good evening. So, this is your first day. First day at Allen. This is the time when you're going to start your preparation, your 2-year preparation for the entrance exams. Now, what I'm going to do, we're going to have this orientation in 2 sections. The first part, I'm going to be talking about the entrance exam as such. Now, we need to understand what is the difference between an entrance exam, a competitive exam, and a regular school exam. Now see, both are exams. School में भी exam होता है 3 घंटे का, entrance exam भी है 3 घंटे का. They match 3 घंटा. वहाँ भी क्वेश्चन पेपर है, यहाँ भी क्वेश्चन पेपर है, वहाँ भी आंसर लिखना है, यहाँ भी आंसर लिखना है, वहाँ भी हमारे आजू बाजू वाले हमें हेल्प करते हैं, यहाँ भी करते हैं. But the point is, we need to understand how different is a competitive exam from a conventional exam, a school exam, a board exam. And what is the meaning of this word competitive? है क्या ये competition? We are going to talk about that part first. So, let's talk about how we compare the 2 exams. Now, I'm going to take an example. I'm going to take an example of CBSE exam, which is the conventional exam, versus IDJ, the competitive exam. And we're going to find out how different are these 2 and how similar are these 2. And this is the interesting part. I'm going to ask you a series of questions, okay? Just to find out how much you know, how much you are aware, okay? And believe me, I've been doing this in a lot of places, and in all the places when I do this particular section, I've always got the most accurate response from Jaipur. Jaipur is a place जहाँ पे मुझे लगता है ऑटो वाले को भी पता होता है एंट्रेंस एग्जाम के बारे में. They're so aware of these things. And the most weird answers I got was from Calcutta. मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, how many people do you think must have given last year's 2015 CBSE exam of class 12th? Listen to the question. CBSE exam, class 12th, all over the country, including the Gulf also. You have Indian schools there. How many people do you think must have given this exam? And I'm talking about science, commerce, humanities, everything included. And before you answer, let me give you the answer of Calcutta. So you have a benchmark where not to go. The first response from Calcutta was 1.5 crore. Now when they said 1.5 crore, पहले तो मुझे लगा मजाक कर रहे हैं. Then I realized they were serious. And I said, what? मेरे मुंह से निकल गया. What? उनको लगा उन्होंने कम बोल दिया. The next was 2 crore. Then later on, over a period of time, I realized that this is because the basic unit of measurement in Calcutta is crore. Whenever anything has to do with human beings, number of people, उनका basic unit crore होता है.
They never say 50 lakh, आधा करोड़. You know? So you know where not to go. All right. चंडीगढ़ की इज्जत आज आपके हाथ में है. Go ahead. How many people do you think must have given this exam? 2015 CBSE class 12. Come on. Let's see Chandigarh. Okay, the opening bid is 40 lakhs. I got a 40 lakh. What about you? Answer nahi dena is not the solution, okay? You'll have to answer something. 40 lakh is the opening bid. 70? Okay. Now we are going from 40 to 70, alright? 20 to 25. 50, very clever. Now Chandigarh people are very clever. मुझे लगता है पहले सेटिंग करके आए हैं सारे. 70, 15. We cover all bases there now. 65, okay. 5 to 8 lakh, alright. 20 to 25 lakh, wonderful. Alright, let's see the figure now. 2015. 10.4. अब आप कहोगे हमारा तो आ गया उसमें 5 लाख भी बोला था 70 लाख भी बोला था 10.4 कहीं ना कहीं तो फिट हो ही जाता है. ऐसे नहीं करने का. वी नीड टू बी मोर एक्यूरेट नाउ. ओके चलो we'll let this one pass. Now tell me IIT-JEE. Now JEE is, by the way, as I'm sure you must be aware, is conducted in 2 stages. Okay, stage 1 is called JEE Mains, conducted by CBSE. अब JEE Mains में आपको क्या लगता है कितने लोगों ने दिया होगा 2015 में? ना इससे पहले कि आप बोलें, this is the calculation you might do. आपको लगेगा अरे 10.4 में तो सारे शामिल हैं, है ना? तो 10.4 में अगर सारे शामिल हैं, कॉमर्स भी शामिल है, ह्यूमैनिटी भी शामिल है, तो IIT-JEE तो सिर्फ साइंस वाले देंगे, तो वो तो इससे कम होगा. फिर आपको लगेगा अरे नहीं ज्यादा होगा, क्योंकि वो तो सारे बोर्ड के बच्चे देंगे. ये तो सिर्फ CBSE था, बाय द वे. वो तो आंध्रा बोर्ड भी देगा, केरला बोर्ड भी देगा, सारे देंगे. इनफैक्ट फैशन है देना. Anybody who takes science has to give JEE Main, चाहे कुछ आता हो ना आता हो, they go there. Okay? तो हो सकता है आपको लगे ज्यादा है. So अब बताइए आपको क्या लगता है? 13 लाख 14 लाख लगता है. मुझे लगता है रात भर प्रिपरेशन करके आए उसका. पहले पता था, मुझे लगता है कि ये ओरिएंटेशन में यही सवाल पूछेंगे. चलो जनाब 13 lakh. Okay, so 13 lakh people gave IIT-JEE Mains. Okay, good. And around 10.4 gave the CBSE. Now, out of this 10.4 lakh who gave the CBSE class 12th exam, how many do you think can pass? 8 to 9 lakhs? 50 to 60,000? हाँ? 10.4 lakh है ये. 50 to 60,000 नहीं है. आधी जनता 1 lakh 90% लोग फेल हो जाएंगे. आपको पता 10th का बोर्ड क्यों हटाया था? 10th में पहले बोर्ड एग्जाम होता था, जस्ट द वे 12th का होता है. अभी भी 10th का होता है, सो कॉल्ड बोर्ड, जो स्कूल में ही देते हैं बच्चे. लेकिन पहले जो बोर्ड एग्जाम होता था ना 10th का, उसको क्यों हटाया मालूम है? सडनली द गवर्नमेंट फेल्ट. जैसे गवर्नमेंट एजुकेशन में ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि एजुकेशन इज नॉट समथिंग दैट गेट्स वोट्स. वोट बैंक नहीं है एजुकेशन में. बच्चे वैसे ही वोट नहीं कर सकते. अगर बच्चे वोट कर सकते हो तो सारे एग्जाम हटा देते हो. 10th का बोर्ड उन्होंने हटाया इसलिए था कि एक स्टडी ने बताया कि काफी सारे बच्चे जो है 10th में जो फेल हो जाते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं.
हर चीज को करने के दो तरीके होते हैं, एक सही, एक आसान, और इन दोनों में से एक ही रास्ता होता है सही, वो है सही रास्ता। लेकिन हमें सबसे अच्छा लगता है आसान रास्ता। हम नहीं, गवर्नमेंट भी ऐसे करती है। सरकार ने सोचा यार फ्लड को कैसे रोका जाए, अब दो रास्ते। एक था सही रास्ता। सही रास्ता होता है जहां पे आप बच्चों को प्रेशर हैंडल करना सिखाओ। यू ट्रेन दिस चिल्ड्रन टू बेयर द प्रेशर। और आसान तरीका होता है प्रेशर ही हटा दो। उन्होंने सोचा यार जब तक हम बच्चों को ट्रेन करेंगे हमारी सरकार ही गिर जाएगी, तब तक कोई नई पार्टी आ जाएगी। तो उन्होंने सोचा एक सिंपल तरीका है, प्रेशर ही हटा दो, ना रहेगा बांस ना बजेगा फ्लूट। उन्होंने कहा 10th बोर्ड हटा दो। बट उन्होंने पता किया क्या, 10th बोर्ड हटा के फाइनली व्हाट दे अल्टीमेटली अचीव्ड वाज दे पोस्टपोन्ड द सुसाइड बाय 2 years। क्योंकि अब वो सारे मिलकर करेंगे 12th में। The fact is, nobody can understand this, and I'm sure you as parents can definitely understand this. However much you can protect the students in school, once they come out of school, the real life faces them the same way as it faces anyone else. And I'm sorry, there'll be no education minister to help you there. In real life, there is competition. And there's a cutthroat competition, and that's the competition we're going to talk about today. So by the way, so 10.4 lakhs, so my question still remains, how many people do you think can pass the exam? 10.4 lakh students. Okay. Okay. अब जो आप गलती कर रहे हो ना, ये गलती बच्चे एग्जाम में भी करते हैं। गलती क्या है, हमने सुना कुछ और हम सोच रहे हैं कि हमने सुना कुछ और। What was my question? मेरा क्वेश्चन क्या था? How many students? No, I never said how many students pass the exam. No. I said how many students can pass the exam. लेकिन आपने क्या सुना? आपने कहा how many students can pass the exam? ना can नहीं होगा। ऐसी होता है एग्जाम में भी। क्वेश्चन होता कुछ और है, हम पढ़ते कुछ और हैं। तो how many students can pass the exam? All can pass. कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन थोड़ी बना रखी है हम पास इतने को ही करेंगे। All can pass the exam. और ये सबसे पहला डिफरेंस है बिटवीन अ सीबीएसई एग्जाम एंड अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सीबीएसई एग्जाम में कोई कंपटीशन नहीं है। आपके मार्क्स का असर किसी और के मार्क्स पे नहीं पड़ेगा, और ना किसी और का मार्क्स आप पे फर्क पड़ेगा। अगर आपने अच्छा किया तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, पीरियड। यू स्कोर 100 on 100, well you get 100% in mathematics. Your marks, your performance is not a function of anyone else's performance. लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साहब ऐसा नहीं होता। ये होता है स्कूल और ये होती है असली जिंदगी। इन दोनों में फर्क देखिए क्या है। 13.03 lakh students appeared in the mains exam, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली आप सोच लीजिए 1.5-2 लाख बच्चे मेंस से पास होके एडवांस के लिए जाते हैं। इसमें से वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख लोग लेते हैं, 1.5 से 2 लाख। And then they put them through the next set called the JEE Advance. अब JEE Advance के बाद जो फाइनल रैंकिंग मिलती है, आपको क्या लगता है कितने लोगों को रैंक मिला होगा? In 2015 26,000। कोई तो पक्का, किसी ने तो पक्का सेमिनार किया पहले मेरा, और वहां पे लिखा भी होगा इसने। लो, मैंने कहा था ना सेमिनार किया होगा इसने पहले। 26,000 स्टूडेंट्स, ये लास्ट रैंक मिला था। अब आप देख लीजिए 13 लाख। एक काम करते हैं, लेट्स मेक इट इजियर टू अंडरस्टैंड। इसको 13 लाख समझ लेते हैं, O3 छोड़ दो, और इसको 25,000 मान लो, इजी। 13 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, 25,000 को रैंक मिलने वाला है।
बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, इनको पता है हम में से 12,75,000 का तो होने ही नहीं वाला। सोचो उस बच्चे के अंदर कितनी मोटिवेशन होनी चाहिए ऐसे एग्जाम को देने के लिए। और ये पहले से फिक्स्ड है। सो यू गिव द एग्जाम एंड यू नो हम 13 लाख में से 12,75,000 का होने ही नहीं वाला। जस्ट इमेजिन हाउ इजी इट इज टू बी इन दैट 12,75,000 दैन इन दिस 26,000। अच्छा, अब वो सवाल पूछते हैं जिसका जवाब आप पहले देना चाह रहे थे। 10.4 लाख स्टूडेंट्स, कितने लोगों ने पास किया होगा? 8 lakh, 9 lakh, well it's close to 9 lakh. 8.53, it's about 8.5 lakh students passed the exam. सोचो सीबीएसई एग्जाम ऐसा एग्जाम है, वो पूछना उन्होंने वहीं से है, आपका सिलेबस फिक्स्ड है, सब कुछ वहीं से पूछना उन्होंने, और कहीं से नहीं पूछना। एंड प्लस दे गिव यू 15 मिनट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। कैन यू बीट इट? मतलब आपको पेपर दिया, पेपर देने के टाइम से पहले 15 मिनट आप सिर्फ पेपर पढ़ो, मतलब अगली बार तो सिर्फ आंसर देने की बारी है बस, कि ये लो क्वेश्चन पेपर, ये लो आंसर, अब तो लिख दो, वही बच गया। उसमें से भी देखो 1.5 लाख लोग लुढ़क गए। खैर एनीवे 2 लाख, ऑलमोस्ट 2 लाख, ऑलमोस्ट 2 लाख पीपल डिडंट क्लियर। एनीवे बट ठीक है, 8.5 नॉट अ बैड आइडिया, ठीक है, चलता है इतना तो देश की आखिर। अब हर साल बाय द वे थोड़ा बहुत इंक्रीज भी होता है गर्ल्स की साइड से, बॉयज का डाउन नहीं होता नीचे वैसे। अच्छा, अब मुझे बताइए, ये जो 26 लाख लोगों को रैंक मिला, ये रैंक है, इसका मतलब ये नहीं कि 26,000 लोग आईआईटी जाने वाले हैं। आपको क्या लगता है आईआईटी में सीट कितनी है? देखो आप एक्चुअली आपको लग रहा होगा ये एलन वाले बड़े गंदे हैं, पहले तो ले लिया पैसा, उसके बाद ओरिएंटेशन में ये सब बता रहे हैं। ये मोटिवेशन करने के लिए बुला रहे थे या डीमोटिवेशन करने के लिए बुला रहे थे? देखिए, मैं आपको ना मोटिवेट कर रहा हूं ना डिमोटिवेट कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं सच। हाँ, लेकिन हम इसको उपाय भी बताएंगे आपको कि इस चीज से बाहर कैसे निकला जाए। हाँ जी जनाब, तो बताइए आईआईटी में सीट कितने हैं? बहुत मोटिवेटिंग आंसर है ये। 5,000। और मैं यह आपको बिल्कुल बता के डीमोटिवेट नहीं करना चाहता कि इसमें 50% रिजर्वेशन है। मैं नहीं बता रहा। 11,000 सीट है, और सोचो 13 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, 11,000 सीट है। वाह। अब अगर आप यहां परसेंटेज देखें सीबीएसई में, पास परसेंटेज 8.53 over 10.4, this comes out to be about 82%, and 82% is okay, not a bad thing. मजा आता है यहां पे देखने में। यहां पे मैं आपको मोटिवेट करने के लिए परसेंटेज दिखा रहा हूं 26,000 का। 2%। 11,000 की बात तो मैं कर ही नहीं रहा, जो कि उसके आधे का भी आधा है, आधे से भी कम है। और फिर रिजर्वेशन, ना 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 ना, सॉरी, छोड़ो, लेट्स नॉट गेट डीमोटिवेटेड लाइक दैट। ये है सक्सेस रेट। फॉर एवरी 100 स्टूडेंट्स 2 are picked. दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटिशन। जब पेपर आसान होता है ना सीबीएसई का, बच्चे बड़े खुश होते हैं। जब मुश्किल होता है बड़े दुखी होते हैं। अभी आपने देखा होगा मैथमेटिक्स का लेंथी पेपर था, some people said very tough and out of this, out of that, whatever, though everything was included in the syllabus, but ठीक है, I can understand it must have been lengthy. एक सीबीएसई एग्जाम में आसान और मुश्किल पेपर का फर्क पड़ता है। आसान पेपर होगा आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, मुश्किल पेपर होगा मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे।
लेकिन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फर्क नहीं पड़ता। कोई भी बच्चा के पूछे ना, सर इस साल का जेई का पेपर आसान था या टफ था, इट यूजलेस क्वेश्चन। पेपर आसान था, सभी के लिए था। 4 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे, सभी के लिए थे। 3 क्वेश्चन में आईआईटी ने गलती करी, सभी के लिए करी। बहुत मुश्किल था, सबके लिए था। एक रिलेटिव बेस्ड एग्जाम में द टफनेस ऑफ अ पेपर इज इमेटीरियल। थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। इफ द पेपर इज टू सिंपल, maybe a person who has not prepared that well could also do well. Paper is very tough, only those people maybe can do well who prepared well, but it's a very minor difference. This is the basic difference between a competitive exam and a conventional school or board exam. But I'm going to rub this competitive things a little bit more. शायद आपको उतने अच्छा तरीके से समझ में नहीं आएगा कंपटीशन क्या है। तो देखते हैं साहब कंपटीशन क्या है। लेट्स टॉक अबाउट आईआईटी जेईई। आई एम टॉकिंग अबाउट एडवांस। 2015 आईआईटी जेईई एडवांस हुआ। जिसका रैंक आया होगा 1, आपको क्या लगता है उसके मार्क्स कितने आए होंगे? आउट ऑफ 504। कैलकाटा का आंसर जानेंगे? कैलकाटा वालों ने कैलकुलेट किया, उन्होंने कहा यार आईआईटी जेईई तो बड़ा टफ होता पेपर, और टफ पेपर है तो मार्क्स कैसे आ सकते होंगे। उनका पहला आंसर था 160। मैंने कहा क्या? फिर उन्होंने उसको गलत समझा, उनको लगा उन्होंने ज्यादा बोल दिया। फिर करते 140। मैंने कहा सोच के देखो, अगर ऑल इंडिया रैंक 1 के 150 आए होते 504 में से, तो जिसका रैंक 26,000 आएगा वो तो आएगा -20। कट ऑफ -20। सोचो कट ऑफ -20 तो कितने मजे आते होंगे। आपको एग्जाम में जाना है, नाम लिखना है, किसी तरह 3 घंटे बैठने, वो जल्दी जाने नहीं देते, और फिर उठ के आ जाओ, यू गेट ए ग्रेट रैंक। -20 में 26,000 है तो 0 में सोचो। तो साहब हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया रैंक 1 की। जो ऑल इंडिया रैंक 1 होता है ना, चाहे पेपर जैसा मर्जी हो, थोड़े सरफिरे लोग होते हैं इस दुनिया में। और जब भी मैं ऑल इंडिया रैंक 1 की बात करता हूं ना, मार्क्स की, सब बच्चों का सर नीचे झुका होता है और मां बाप देख रहे होते हैं इंटरेस्टिंगली। बच्चों का फंडा होता है, हमें क्या करना है इससे। तो ये मां बाप वाला क्वेश्चन है, ये फॉर पेरेंट्स। सो बताइए 504 में से क्या मार्क्स आएंगे टॉपर के? अब ये मत कहना 504, 350, 490। उसने कहा बेटा कैलकाटा हियर कम। 490 है, 469। ये है जनाब 93.05%। Scoring this is a very very big deal, believe me. You're talking about JEE Advanced, where the question paper by itself is going to be tricky. On top of that, you have negative marking. You do something wrong, you not only don't get the 3 or the 4 marks allotted for that question, you get -1 bonus. और आईआईटी भी अच्छा वर्ड, जो इंस्ट्रक्शन है ना आईआईटी, उसमें आईआईटी बड़ा प्यार से लिखती है, -1 विल बी अवॉर्डेड टू यू। $504 में से 469। जब ये बताया तो बच्चों का सर नीचे। अब बच्चों का सर ऊपर कब आएगा? देखो बच्चे कहते हैं भाड़ में गया 1, इसका बताओ हमें। हमें तो इसकी नैया पार लगानी है। ये पार हो गया, आईआईटी हो गया, रैंक आ गया, ब्रांच मिला ना मिले, मेरे मां बाप चुप हो जाएंगे बस। क्योंकि 2 साल से सुनते आए हैं, पढ़ ले कुछ बन जा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था। ये सारे ऐसे जो हैं
सुन के पक गए बेचारे बच्चे ना। तो वो कहते जी हमें रैंक मिल जाए, माँ पापा मासी खासकर, क्योंकि उनका बेटा आईआईटी में है, वो सबसे पहले वही फोन करके पूछते हैं बेटा रैंक क्या आया, जिस दिन आईआईटी का रिजल्ट आया। तो रैंक आ जाए भगवान, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये जो है ना, ये सारे बच्चों को मोटिवेट करेगा। अब बताओ इसके क्या मार्क्स आए होंगे? 126। ये देखो 124, लो उससे भी 2 नंबर कम। और परसेंटेज देखो कितना मजेदार है ना मजेदार, 24.6। अब सारे बच्चे कहेंगे मां घबरा मत, मेरा तो हो गया समझ ले। अरे 24% स्कूल में 33 चाहिए होता है, ये जो 24% है। तो अगर आपको लगता है थोड़ी बहुत मोटिवेट हो गए तो वापस आपको जमीन पे लाते हैं। अब मुझे बताओ, ये जो 2 मार्क्स हैं 469 और 124, इसमें गैप कितना है? कितने मार्क्स का गैप है? सबट्रैक्ट करना है, जल्दी करो। 345। इसमें है कितने लोग? 26,000। यानी कि इन ए रेंज ऑफ 345 यू हैव 26,000 लोग। तो सोचो हर एक नंबर पे कितने लोग होंगे। द एवरेज रैंक्स पर मार्क गोज लाइक दिस। और जानते हो कितना है? 76। On an average, for every 1 mark you lose, you go down by 76 ranks. 1 मार्क। कभी परवाह करिए? Have you ever bothered about 1 mark in your life? 1 mark, अरे हमारे तो 10-15 तो ऐसे निकल जाते हैं। और अगर आपने ये मार्क एक ऐसे गलती के वजह से खोया जिसे आप अवॉइड कर सकते थे, उस गलती को क्या कहते हैं भाई? सिली मिस्टेक। हर बच्चा जब सिली मिस्टेक करता है, he feels proud. मामा I got 99 out of 100 in math. जैसे घर में अनाउंस किया, अब मामा होंगे ना, एक बड़ी बुरी आदत होती है, उनको वो नहीं दिखता जो आया है। 1 नंबर कहां गया? अबे यार मां 99 तो आए। एंड देन जब मम्मा कहती है वो 1 नंबर कहां गया, तो बच्चा गर्व के साथ छाती फुला के कहता है सही मिस्टेक। वो ये कभी नहीं कहता मुझे नहीं आता था। अगर वो ये कह दे कि मुझे वो 1 नंबर का नहीं आता था, उसको लगता हो आता था, लेकिन मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूं कि आने के बाद भी नहीं आया। But they would rather call themselves stupid than call themselves a person who didn't know a particular question. My point is, स्कूल में फर्क नहीं पड़ता। स्कूल में 99 वाले को भी उतनी इज्जत दी जाती है जिसको जितने 100 वाले को दी जाती है। सबको बता दें 99 जिसके आए होंगे वो सिली मिस्टेक से गया होगा आपका 1 नंबर। अगर आपको 1 नंबर की इंपॉर्टेंस जाननी है ना, वेलकम टू IIT JEE। ये आपको सिखाएगा 1 नंबर क्या होता है। The first thing you learn today in the orientation session is remember 1 mark can make or break your life. 76 रैंक का मतलब है आपका ब्रांच बदल सकता है। आपको चाहिए था एक पर्टिकुलर इंजीनियरिंग, आपको वो मिलेगा ही नहीं कहीं, 1 नंबर की वजह से। 1 mark can change what you will do 20 years from today. That is the power of 1 mark. Or silly mistake, wow, amazing. We don't really care what we are doing. मुझे एक चीज बताओ, जब आपके वही मार्क्स नहीं आएंगे जिसके आप हकदार हो, तो फिर आएंगे किसमें? आपको 100 में से आता था 60 मार्क्स। जब 100 में से 60 मार्क्स का पेपर आपको आता है और आपके मान लो आए 40, ये बताइए हम क्या
मतलब है ज्यादा पढ़ाई करो। मेरे स्टूडेंट ने भी ऐसे किया था एक बार। उसके क्या हुआ, एक एग्जाम में ये बाई चांस हो गया कि वो हर रोज 4 घंटे पढ़ता था 100, आ गए 40 नंबर। उसने कहा अब तो मुझे मंत्र पता चल गया, 1 hour 10 यूनिटरी मेथड, 4 घंटा 40 नंबर, 1 घंटा 10 नंबर, 100 नंबर लाने के लिए 10 घंटे पढ़ो। अब वो कहते 10 घंटे तो पढ़ नहीं सकता, 8 घंटे पढ़ ले तो 80 तो वैसे ही आ जाएंगे। उसने अगले एग्जाम में क्या एवरेज 7.5 hours, मार्क्स आए 32। रोता हुआ आया मेरे पास, सर ये क्या हो गया? मैंने कहा क्या हो गया? सर मैंने ज्यादा पढ़ा, मुझे ज्यादा आता था और मार्क्स मेरे कम आए। मैंने कहा इसीलिए तो आए। इसीलिए आए का क्या मतलब है? मैंने कहा बेवकूफ एक चीज बता, पिछले एग्जाम में कितने मार्क्स का आता था? ही सेड आई न्यू 65, आए कितने? 40। सिलेबस से कितना गया? 25। मैंने कहा अब कितना आता था? ही सेड आई ऑलमोस्ट न्यू 88 मार्क्स। मैंने कहा 88 मार्क्स का आता था, अटेम्प्ट कितना किया? 88 किया होगा। हाँ। मैंने कहा घंटे तो 3 ही थे। पिछली बार 3 घंटे में तुमने अटेम्प्ट किया 65, 25 का एरर किया। इस बार तुमने उसी 3 घंटे में जब अटेम्प्ट किया 88, द नंबर ऑफ मिनट्स पर क्वेश्चन डिक्रीजेस, सिली मिस्टेक इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। आप लोग क्या सोचते हो पता है? आप सोचते हो मैंने एक टॉपिक, एक बार हुआ 97 में जेई 2 बार हुआ। एक बार पेपर लीक हो गया था, आईआईटी जेई में भी ऐसा होता है। तो एक लड़का रोता हुआ आया दूसरे पेपर के बाद मेरे पास, सर मैं बर्बाद हो गया। मैं कैसे बर्बाद हो गया बता? ही सेड सर फर्स्ट पेपर बढ़िया था, उसमें सिर्फ 11 मार्क का इनऑर्गेनिक आया। इस बार सर इनऑर्गेनिक 25 नंबर का आया, मैं तो 25 का 25 छोड़ाया, मेरे तो नंबर ही डूब गए। मैंने कहा 75 आएंगे? कहता नहीं। मैं 70 नहीं, आने थे 55, 55। He is crying for that 25 which he did not know. He is not even bothered about the 20 marks which he knew and he is not going to get. First and foremost, do not bother about what you did not know on the day of the exam. Bother about how much you knew and how much did you get. Is there a gap? If there is a gap, bridge it first. Then talk about studying more. ज्यादा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है जब तक आपके उसी के मार्क्स नहीं आएंगे जिसका आपने पढ़ा है। The day you say out of 100 I knew 50 and I got 50, I guarantee you, मैं आपको गारंटी देता हूं, जेई में आपका सिलेक्शन पक्का है। If you want to ever win a competitive exam, the first rule of the game is strike rate. आपको कोई भी बॉल खाली नहीं छोड़ना, जो आपने खेला। इफ यू आर अटेम्प्टिंग ए क्वेश्चन, इट शुड फेच यू मार्क्स पीरियड। अगर आपके उन्हीं क्वेश्चंस में मार्क्स नहीं आएंगे जिसे आप जानते हैं, तो किस में आएंगे? स्कूल में क्या होता है? जस्ट इमेजिन, आप स्कूल में एक एग्जाम लिख रहे हो, आप भी लिख रहे हो, आपका दोस्त भी लिख रहा है, बड़ा मुश्किल से सवाल है, कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है और आपको आता है और आप कर रहे हो फटाफट और आपने हर स्टेप सही किया, आपके दोस्त ने भी हर स्टेप सही किया, लेकिन आप थोड़ा टेढ़ा होकर लिख रहे हो जैसे आपकी आदत है, और एंड में आया 3 + 3, तो हमने लिखा 3 + 3 और कैलकुलेटर से भी सीधा हो गया। वो प्लस कैसे दिखाई देगा? मल्टीप्लीकेशन। अब हो गया 9, आपने लिखा 9, आंसर था 6, आपके दोस्त ने लिखा 6, पेपर आपने सबमिट किया, पेपर जिस दिन मिला आपके दोस्त को मिले 5 में से 5, आपको मिले 5 में से 0, क्या करोगे? मैं बताता हूं क्या करोगे। 5 में से 0 ये कैसे हो गया? 5 में से 5, हर स्टेप चेक किया, अरे तेरा क्या 6, मेरा 9, ओह शिट मैन। लेकिन इस छोटी सी गलती के लिए that lady has got 5 marks, how dare she?
पेपर उठाया गए, वहां ऐसी लंबी सी लाइन लगी पड़ी है। मैम के पास पहुंचे, हाँ मैंने कहा ठक, पेपर फेंका। क्या कहते हो क्या? मैम लुक एट एवरी स्टेप, हर स्टेप सही किया मैम, लास्ट में देखो 3+3। मैम यू नो दैट आई नो दैट 3+3 is 6. I mean, do you think I can do differential equation and not know what 3+3 is? इतना तो आप में बुद्धि, मतलब गलती टीचर की है, मतलब गलती करी बंदे ने, स्टूडेंट ने, अब गलती टीचर की है, मतलब टीचर हैज टू बी डिफेंसिव। टीचर कहती नहीं, गलती तो गलती होती है, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू मार्क्स। नाउ यू नो गलती तो हो रखी है। अब क्योंकि आप मम्मी के साथ अक्सर शॉपिंग करते हो ना, तो आपको बार्गेनिंग आता अच्छी तरह। आपको पता मम्मी कैसे शॉपिंग करती है? शी गोज टू शॉप, कितने का है? 1500 का है, 200 का दोगे? सीधा रेट 1500 में से 200, मतलब बंदे की इज्जत भी नहीं रखी उसने। 200 का दोगे? नो। नाउ द नेक्स्ट 100 steps are most important. Now when she walks, the next 100 steps she'll walk very slowly. Both are trying to figure out who will call whose bluff. अच्छा ठीक है, 1000 में ले लो, 250, बस 250 रुपए से ज्यादा नहीं। करते कराते 350 का माल बिक जाता है। अब आपको भी आदत है ये सब करने की। आपने मैम को कहा, मैम आई डू अंडरस्टैंड, मैंने गलती कर दी, चलो आधा नंबर काट के 3.5 कर देती, चलो। मैम कहती है आधा ही दूंगी। फिर करते करते बार्गेनिंग करते, अब वो लिटरली बार्गेनिंग चल रही है मार्क्स की। फाइनली सेटल हुआ, ना तेरी ना मेरी, 2.5 नंबर चल। अब ये 2.5 नंबर लेके आया अपनी सीट में, अपने दोस्त को दिखा के कहता है, देखा कैसे बेवकूफ बनाया। 0 दिया था, मेरे को मिल गया 2.5। आप समझ ये नहीं रहे कि आपने 2.5 खोए हैं एक ऐसी गलती के लिए जिसे आप अवॉइड कर सकते हैं। स्कूल में फर्क नहीं पड़ता, लड़ झगड़ के मिल जाएगा मार्क, जेई में नहीं मिलेगा। और जेई में आपको मैं एक चीज और बता दूं, जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है ना, वो बेवकूफ नहीं है। आपको क्या लगता है ऐसे क्वेश्चन पेपर कैसे बनाए जिसको 13 लाख लोग दें और फाइनली उसमें से 1-1.5 लाख ही वो सेलेक्ट करें एडवांस के लिए, या एडवांस में 1.5 लाख लोग दें और फाइनली 26 लाख को सेलेक्ट करें? वो तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन बनाएंगे, उनको पता है, उन्होंने लिखा है कॉन्वेक्स लेंस, उनको पता है बच्चा बेवकूफ पक्का है, पढ़ेगा कॉन्वेक्स मिरर। वो देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर का फॉर्मूला लगा तो क्या आंसर आ रहा है? 4, ले पे ऑप्शन 4 पहला। कॉन्वेक्स लेंस, कोई पढ़ेगा कॉन्केव लेंस, जैसे अभी देखा था ना, हाउ मेनी कैन पास। तो हम अपने क्वेश्चन को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, हमें फॉर्मूला ये आता है कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस। उसका आंसर क्या है? 6 ले भाई, बी ऑप्शन 6। वो पहले देखते हैं आप क्या क्या गलतियां करोगे, उसके ऑप्शन पहले सेट कर लेते हैं, उसके बाद एक ऑप्शन डालते हैं सही आंसर। और आपको क्या लगता है, आपने कैलकुलेशन किया एक बार और आपका आंसर 6 और एक ऑप्शन 6 है, तो आपको लगता है अरे ये कैसे पॉसिबल है, सही होगा। उनको कैसे पता मैंने ये गलती करी है? अगर कोई गलती करी है तो उनको पता है, बिकॉज दीज एग्जाम्स आर नॉट सिलेक्शन एग्जाम्स, these are rejection exams. They select by rejecting people. और मैम से झगड़ना, 6 की जगह 9 लिख दिया तो क्या उल्टा ही तो लिखा उसको। एक छोटी सी गलती, कई बार लगता है ना एक छोटी सी गलती के लिए इतने मार्क्स क्यों कटे। मैं पता क्या कहता हूं, स्कूल में होना यह चाहिए, कितनी भी छोटी गलती हो, गलती करो पूरे नंबर काटो, तभी सुधरेंगे लोग। ये पार्ट मार्क दे देके ना आदत बिगड़ जाती है, फिर लगता है क्या फर्क पड़ता है, आधा ही तो नंबर कटा। आप मुझे क्या बताओ, आपको कोई गर्मा गर्म सूप दे होटल में, यू गो टू रेस्टोरेंट, somebody gives you hot tomato soup, और देते समय कहता है एक गलती हो गई, एक ड्रॉप यूरिन कर गया, प्लीज डोंट माइंड, पियोगे? मैम एक ही ड्रॉप था,
वो आपको पता भी नहीं चलेगा इसमें। देखो, नो डिफरेंस इन टेस्ट। लोग तो स्विमिंग पूल में वैसे घुस जाते हैं, उनको लगता है पानी साफ है, उनको सबको ये लगता है कि मैं ही कर रहा हूं यहां पे। एक ड्रॉप ही तो गिरा है, पियोगे? नहीं पियोगे ना, क्योंकि 1 ड्रॉप इज सफिशिएंट टू स्पॉइल सूप। आपको पता है बांग्लादेश 1 रन से हारा था, उनको कोई स्पेशल वो नहीं मिला कि क्योंकि आप 1 रन से हारे थे आपको छोटा वर्ल्ड कप। इट डजंट हैपन लाइक दैट। लाइफ इज वेरी वेरी क्रूअल। लाइफ डजंट वेट फॉर यू, स्कूल वेट फॉर। स्कूल में सारा ड्रामा होता है ये सब। ओ मेरा बच्चा ये लेते को 4.5 दे दिया। लाइफ में सब कुछ नहीं होता। यू लूज डजंट मैटर बाय हाउ मेनी मार्क्स। So remember, the first thing you need to understand is 1 mark can make or break your career. और अगर आपको 1 मार्क की इंपॉर्टेंस अभी भी समझ में नहीं आई, चलिए आपको एक और चीज दिखाते हैं, 1 मार्क क्या होता है। मैं आपको अलग अलग रेंज में दिखा रहा हूं 1 नंबर का फर्क कितना पड़ता है। पहले 500 रैंक में 1 नंबर का फर्क में सिर्फ 5 लोग होते हैं, 3 लोग। ओके, ये देखिए रेंज ऑफ मार्क्स। टॉपर के 469, जिसका रैंक 500 था, उसके मार्क्स थे लगभग 306। अगले 500 में देखिए 1 नंबर पे कितने लोग हैं, मार्क्स का रेंज देखिए। अगला रेंज देखिए, अगला 500। अब मैं आपको अलग अलग रेंज में दिखा रहा हूं जितने मार्क्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ये देखिए, ये लगभग 2000 बच्चों का रेंज है, ठीक है। इसमें 1 नंबर पे 66 लोग हैं। मार्क्स का रेंज देखिए आप। अगले इस रैंक में 4000 से, ये मैं जे एडवांस की बात कर रहा हूं, 4000 से 6000 रैंक के आसपास देखिए 116। 1 नंबर पे 116 रैंक है। आपका एवरेज तो कब का चला गया, वो तो एवरेज था। ये देखिए मार्क्स का रेंज। आगे देखिए और मजा आएगा, 329। और बेस्ट पार्ट पता क्या है, आपने क्वेश्चन करना था, आपसे एक छोटी सी गलती हो गई, ए की जगह मार्क कर दिया बी, मिलने थे +3, मिला -1, 4 नंबर गए। 1 नंबर में ये है, और ये तो एक गलती है। अब देखिए कई बार डिक्रीज भी हो जाता है, लेकिन डिक्रीज भी देखो कैसे हो रहा है। And I've saved the best for the last. अब 20,000 से 26,000, जिसका रैंक था 20,183 और जिसका रैंक था 26,456, इनके मार्क्स दिखा रहा हूं आपको क्या थे। यहां पे 1 नंबर में 3,000 रैंक है यहां पे। वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसके लिए आप तैयारी करने आ रहे हैं। The idea was not to demotivate you, which I may have ultimately done. The idea is to bring you to reality, that look, this is what will happen, and this is exactly the same thing will happen even in LL. क्योंकि जो LL का जितना सैंपल साइज, जितने LL में बच्चे पढ़ते हैं, इस सैंपल साइज में जब आपको मार्क्स मिलेंगे ना, रैंक मिलेंगे ना, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू हैविंग दैट इन IIT। ऐसा होगा, एक गलती की वजह से इतना ड्रॉप करेगा आपका। थैंक यू।